سکتا ہے ضلع خان پارٹی کے ہاتھوں دشمنوں کا کوئی اور وائرلیس لگ گیا ہو. ایسا ہوا تو اسی پر رابطہ کریں گے. میں آپ کو کہوں گا عبداللہ کیا حال ہے اور آپ نے فوراً چینل نمبر 15 لگا لینا ہے. اس نے سرحد سے منصوبہ سوچتے ہوئے بیان کیا اور میرا جواب سنے بغیر دوڑ لگا دی. اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی نک پارٹی کی طرف سے غافل نہیں ہوا تھا. 11421 اوور. نک مبین کو پکار رہا تھا. 21 سینڈی اور میسج اوور. مبین نے جواب دینے میں دیر نہیں لگائی تھی. شاباش نک. نامعلوم اسے کس بات پر شاباش دے رہا تھا. اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی تھی. اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ شاباش فریکوینسی تبدیل کرنے کا کوڈ بھی ہو سکتا ہے. تبھی تو ایک دم خاموشی چھا گئی تھی. میں فوراً ناب گھمانے لگا. 1-2 منٹ میں مجھے مطلوبہ فریکوینسی مل گئی تھی. واقعی میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا. شاباش کا مطلب متبادل فریکوینسی لگانا ہی تھا. مبین اپنی بات ختم کر چکا تھا. اس وقت نک بول رہا تھا. 8 آدمیوں کی پارٹی کو فوراً ہماری طرف روانہ کر دو. اگر ہیلی کاپٹر کی آمد سے پہلے دشمن یہاں پہنچ گیا تو ہم بے دستو پا مارے جائیں گے. اوور. مبین خوش آمدانہ لہجے میں بولا. سر آپ کے کہنے سے پہلے میں 10 آدمی آپ کی طرف روانہ کر چکا ہوں. اوور. اپنے ذرائع کو بھی حرکت دو. معلوم کرو یہ سنائپر کون ہے. اوور. نک میرے بارے جاننے کے لیے بے چین تھا. جی سر کل تک معلوم کر لوں گا. اوور. اوور اینڈ آل. نک نے جوں ہی بات ختم کی میں نے فوراً پہلے والا چینل لگا لیا تھا. کیونکہ ایک تو اسی پر کمانڈر عبدالحق نے مجھ سے بات کرنا تھی. دوسرا اگر نک یہ جانچنے کی کوشش کرتا ہے کہ آیا میں اس کی بات سن سکا ہوں یا نہیں تو لازماً وہ اسی چینل پر مجھے پکارتا. میں بمشکل مطلوبہ چینل لگا پایا تھا کہ لورا براؤن کی لوچدار آواز ابھری. شہزادے کہاں غائب ہو. میں نے لہجے میں خوشی سموتے ہوئے کہا. مجھے شہزادہ کہنے کا مطلب ہے ڈیٹ پکی ہو گئی. اوور. وہ شوخی سے بولی. بالکل قسم بھی کھا سکتی ہوں مگر تم آؤ گے نہیں. اوور. میں اسی کے انداز میں بولا. تم تو آ جاؤ. ابھی کھڑے ہو کر میری طرف چلنا شروع کر دو. میری جگہ کے بارے تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا. وعدہ کرتا ہوں گولی نہیں چلاؤں گا. اوور. وہ ترکی بترکی بولی. میں نے تمہارے ساتھ جانے کی حامی بھری ہے قیدی بننے کی نہیں. اگر میرے ساتھ جانے کا شوق ہے تو کسی شہر میں ملنے کی کوشش کرو. اوور. میں نے کہکا لگایا. چلو یہ دعوت ادھار رہی. اوور. اپنا نام نہیں بتاؤ گے. اوور. اس نے ایک بار پھر مجھے کریدا. تم مجھے عبداللہ خان کہہ سکتی ہو. اوور. میں نے ایسا نام بتایا جو ہر مسلمان خود کو سمجھتا ہے. عبداللہ خان. اس کے انگریزی لب و لہجے نے اتنے پیارے نام کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. میں جلدی سے بولا. خالی خان کہنا کافی ہوگا. اوور. وہ بولی. خان تو یہاں سارے پٹھان ہے. اوور. مگر تمہارے ساتھ جانے کا حقدار تو صرف میں ہوں نا. تو بس تم اسی نسبت سے یاد رکھ لینا کہ وہ خان جس کے ساتھ تم نے جانا ہے. اوور. اس نے کہکا لگا کر گویا میری حوصلہ افزائی کی تھی مگر جب وہ بولی تو اس کا لہجہ خاصا بدلا ہوا تھا. تو خان صاحب الوداع. شاید تم زندہ نہ بچ پاؤ. اوور اینڈ آل. اس کے بدلے ہوئے لہجے نے مجھے چونکا دیا تھا. لیکن میری حیرانی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ پائی تھی. ہیلی کاپٹر کے پروں کی پرشور آواز مجھ تک پہنچ گئی تھی. میں نے فوراً ان کی متبادل فریکوینسی لگائی. وہ مبین کو اس پہاڑی کی نشاندہی کرا رہی تھی جس پر میں موجود تھا. ایک ہیلی کاپٹر اس پہاڑی پر بھیجنا. وہاں کم از کم 2 آدمی موجود ہوں گے. انہیں زندہ نہیں بچنا چاہیے. پائلٹ سے رابطے میں تو ہونا. اوور. یس میڈم. اور جو آدمی آپ کے پاس آ رہے ہیں انہیں بھی اس پہاڑی کی طرف روانہ کر دیتا ہوں. اگر کوبرا کی گن سے بچ بھی گیا تو ہمارے آدمیوں کے ہاتھوں نہیں بچے گا. اوور. لورا نے پوچھا. تینوں کوبرا آ رہے ہیں. اوور. نہیں 2 کوبرا اور 1 MI سیوٹن ہے. گڈ. 1 کوبرا اور 1 MI سیوٹن لاشیں اٹھانے بھیج دو. اوور. مبین نے پوچھا. آپ کے پاس نہیں بھیجنا. اوور. نہیں اس خبیث کے پاس جیسے ہی ہیلی کاپٹر پہنچے گا ہم دونوں واپسی کرا لیں گے. اوور اینڈ آل. لورا براؤن نے گفتگو ختم ہونے کا اعلان کیا. خبیث کا لقب اس نے مجھے عطا کیا تھا. ہیلی کاپٹروں کی آواز سنتے ہی میں نے رائفل کا بٹ اور 2 پائی کلوز کر کے تھیلے میں ڈالی. کیوں اتنا وقت میرے پاس نہیں تھا کہ رائفل کو مکمل کھولتا. مجھے ہیلی کاپٹر کی اتنی جلدی آمد کی امید نہیں تھی. یقیناً گردیز کیمپین کے پاس ہیلی کاپٹر موجود تھی. تبھی تو اس صورت سے 3 ہیلی کاپٹر یہاں تک پہنچ گئے تھے. ویسے بھی امریکیوں کو ہیلی کاپٹروں کی کیا کمی ہو سکتی تھی. ان کی بات کے اختتام تک میں جھولا اپنی پیٹھ پر لاد کر کسی پناہ گاہ کی تلاش میں چل پڑا تھا. 10 آدمی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے لیکن کوبرا گنشپ ہیلی کاپٹر میرے پر خچے بھی اڑا سکتا تھا. یہ خاص جنگ کے لیے تیار کیا گیا ایک تیز رفتار ہیلی کاپٹر ہے. مچھلی جس طرح پانی میں حرکت کرتی ہے یہ ہوا میں ایسے ہر طرف سے گھوم کر حملہ کرتا ہے. عام ہیلی کاپٹرز میں گن کو چلانے والا گن میں بیٹھا ہوتا ہے جو کسی بھی ہدف پر فائر کرتا ہے لیکن کوبرا کا پائلٹ آٹومیٹک گن سے ہدف پر تباہی پھیرتا ہے.
इसमें ऑटोमेटिक 12.7 mm की गन्ने फिट होती हैं। यहाँ ये भी बताता चलूं कि हैवी स्नाइपर रेंज मास्टर की गोली भी 12.7 mm ही होती है। अगर एक गोली इंसान की खोपड़ी को कई टुकड़ों में तकसीम कर सकती है, तो इसी कैलिबर की दर्जनों गोलियों ने क्या तबाही मचाना थी, ये अंदाजा करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मेरे पास चलकर या भागकर फायर करने के लिए ले दे के ब्रेटा पिस्तौल ही मौजूद था। 10 क्लाशनकोफों और एक कोबरा हेलीकॉप्टर से फकत ब्रेटा के साथ मुकाबला करना यकीनन खुदकुशी की आसान कोशिश कही जा सकती है। दुश्मन के 10 आदमियों ने मगरिबी जानिब से आना था। मेरे लिए मशरिकी तरफ फरार होना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इस जानिब कोई ऐसी आड़ मौजूद नहीं थी जिससे मैं कोबरे के पायलट की नजरों से बच पाता। अलबत्ता शुमाल की जानिब मौजूद दरख्त और झाड़ियां मुझे नजरी आड़ मुहैया कर सकती थी। सूरत से फैसला करते हुए मैं इसी जानिब चल पड़ा था। हेली की आवाज लम्हा बलम्हा करीब आती जा रही थी। इसकी आमद से पहले मैं झाड़ियों के एक झुंड में घुसकर बेहिस्सो हरकत लेट गया था। कोबरा बहुत नीची परवाज करता हुआ इन झाड़ियों के करीब से गुजरा जहां मैं पहले लेटा था। इसके साथ ही मेरे कानों में तड़ की भयानक आवाज गूंजी। वो गोलियों की बौछार करता हुआ आगे गुजर गया। मेरा दिल होलने लगा था। अगर वो इसी तरह हर झुंड पर गोलियों की 2-3 ब्रेस्ट फायर करता रहता तो मुझे निशाना बनाना इसके लिए मुश्किल ना होता, क्योंकि इस पहाड़ी पर झाड़ियों के इतने ज्यादा झुंड मौजूद नहीं थे। चक्कर काट कर कोबरा वापस मुड़ा और इस मर्तबा गोलियों का ब्रेस्ट साथ वाली झाड़ी पर पड़ा था। जो सोच मेरे दिमाग में आई थी, पायलट भी इस पर अमल पैरा हो गया था और जल्द ही मेरा नंबर आ जाना था। कोबरा मेरे साथ वाली झाड़ी पर गोलियों का ब्रेस्ट फायर करता हुआ आगे गुजर रहा था। इस वक्त मेरी बचत मगरिबी सिमत का रुख करने में थी। वो इस तरफ से दुश्मन ऊपर को आ रहे थे, लेकिन कोबरे की गोलियों से इसी जानिब उतर कर बचा जा सकता था। लेकिन फिर मैंने एक और रिस्क लिया और कोबरे के मुड़ने से पहले झाड़ी से निकलकर चंद कदम दूर मौजूद इस झाड़ी में घुस गया जहां कोबरा अभी फायर करके आगे गया था। अगर पायलट मुझे देख लेता या वो गलती से दोबारा इसी झाड़ी पर फायर कर देता तो लोरा ब्राउन का मुझे अलविदा कहना हक सच साबित हो जाता है। मगर पायलट मुझे नहीं देख पाया था और ना इसने फायर करने में गलती की थी। हालांकि इस वक्त इसका गलती करना इसे कामयाब कर सकता था। इसने वापसी पर थोड़ी देर पहले मेरा ठिकाना बनने वाली झाड़ियों पर गोलियों का छिड़काव किया और आगे गुजरता चला गया। इस सीध में जितनी झाड़ियां आई थी, इन तमाम पर कोबरे की गोलियां लगी थी। कोबरे के सर पर से गुजरते ही मैं मजीद जनूब की तरफ बढ़ा। अगली झाड़ी 15-20 कदम दूर थी, लेकिन कोबरे के मुड़ने से पहले मैं झाड़ी में दाखिल हो चुका था। पायलट गोलियां बरसाते हुए तरतीब से तमाम झाड़ियों की छानबीन कर रहा था। यह भी मुमकिन था कि एक दफा फायर कर चुकने के बाद पायलट दोबारा एक एक ब्रेस्ट तमाम झाड़ियों पर बरसाना शुरू कर देता है। मैं जिस झाड़ी में घुसा हुआ था, इसी से कोबरे ने फायरिंग की इब्तदा की थी। इसके बाद जुनूब की तरफ झाड़ियों के झुंड मौजूद नहीं थे। इक्का दुक्का दरख्त बिलाशुबा मौजूद थे, लेकिन दरख्तों के नीचे मैं पायलट की निगाहों से नहीं छुप सकता था। चंद लम्हे सोचने के बाद मैंने एक और तजवीज़ पर अमल करने का फैसला किया। जुनूब की जानिब मेरे छुपने की जगह से 50-60 गज दूर एक पथरीली चट्टान पड़ी थी। इसकी आड़ लेकर मैं पायलट की नज़र में आने से बच सकता था, लेकिन इसके साथ यह भी ज़रूरी था कि मैं पायलट के साथ साथ इस चट्टान के दाएं बाएं हरकत करता रहता। कोबरे के अगली झाड़ी पर आग बरसा कर आगे बढ़ते ही मैं आखिरी झाड़ी से निकलकर पूरी कुव्वत से दौड़ा। मेरी पीठ पर लदा रेंज मास्टर का झोला मुझे ज्यादा रफ्तार से भागने नहीं दे रहा था, लेकिन इस वक्त जिंदगी और मौत की बाजी शुरू थी और ये बाजी कोई भी नहीं हारना चाहता। यूं भी पायलट की तवज्जो इन झाड़ियों की तरफ मबजूल थी जहां वो गोलियां बरसा रहा था। चट्टान के जनूबी जानिब आड़ लेते ही मैं पहाड़ी चढ़ते हुए सांसों को एतदाल पर लाने लगा। इसके साथ ही मेरा जहन तेजी से इस हालत से निकलने की तजवीज़ सोच रहा था। अगर पैदल दुश्मन ऊपर पहुंच जाता तो यकीनन वो मुझे चूहे की तरह घेर कर हलाक कर देते। कोबरे की वजह से मैं किसी आड़ में रहकर भी इनका मुकाबला न कर पाता कि कोबरा सर पर पहुंचकर मुझे बड़ी आसानी से हलाक कर देता। बचाव का एक ही तरीका था कि कोबरा वहां से चला जाता, जबकि पायलट का फिलहाल ऐसा इरादा नजर नहीं आ रहा था। और फिर तंग आमद बजंग आमद के मुस्ताक मैंने ऐसा फैसला किया जिसे आम हालात में खुदकुशी ही का नाम दिया जा सकता है। रेंज मास्टर का झोला पीठ से उतार कर मैंने राइफल बाहर निकाली और इस पर साइट लगाने लगा। चंद सेकंड्स बाद ही मैं 200 मीटर रेंज लगाकर राइफल के पीछे लेट चुका था। इस वक्त अगर पायलट इस तरफ देख लेता तो मेरा बचना मुहाल था। भरी हुई मैगजीन राइफल से जोड़ते हुए मैंने राइफल कॉक की और पीछे लेटकर पायलट पर निशाना साध लिया। कोबरे की तेज रफ्तार मेरे लिए निहायत मुश्किल पैदा कर रही थी। अगर मैं सीधी गोली फायर करता तो पायलट को कभी भी निशाना न बना सकता। मुनासिब लीड लेकर ही मैं कामयाब फायर कर सकता था।
गो किसी भी मुतहर्रक हदफ को निशाना बनाने के लिए लीड का फार्मूला मौजूद है, मगर मसला यह था ऐसा तभी मुमकिन है जब मुतहर्रक चीज की रफ्तार मालूम हो, और कोबरे की रफ्तार मुझे मालूम नहीं थी, इसलिए मज़कूरा फार्मूला मेरे किसी काम का नहीं था। अलबत्ता पेशावर स्नाइपर्स के दिमाग में एक अपना अंदाजे का मीटर लगा होता है, और इस वक्त मेरा ज़ाती अंदाज़ा ही काम आ सकता था। हेली के बाएं खिड़की का शीशा खुला था, इसलिए मैं इसके मगरिब की तरफ मुड़ने का इंतज़ार करने लगा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था क्योंकि कोबरा झाड़ियों के आखिरी झुंड को टिमटिमाने लगा था। पायलट के चक्कर काट कर मगरिब की तरफ मुड़ते ही मैंने पायलट के सर पर शिस्त ली, और इसकी अपनी राइफल के मुतवाजी आने से पहले ही मैंने बैरल को अंदाजे से मुनासिब लीड देकर दिल दिल में ही अपने पाक परवरदिगार को मदद के लिए पुकारते हुए ट्रैगर दबा दिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक फायर था। ट्रैगर दबाते ही मैंने जल्दी से राइफल को दोबारा कॉक किया, मगर इसकी ज़रूरत पेश नहीं आई थी। अल्लाह पाक ने मेरे मनाजात को कबूल फरमा लिया था। एकदम हेलीकॉप्टर घूमा और फिर दरख्तों से टकराता हुआ ज़मीन बोस हो गया। ढलान में गिरने की वजह से वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया था, लेकिन इसके गिरने से पैदा होने वाला धमाका काफ़ी ज़ोरदार था। हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने का ये मेरा पहला तजर्बा था। इससे पहले मुझे ऐसा मौका नहीं मिला था कि मैं हेलीकॉप्टर निशाना बनाने की कोशिश ही कर सकता। मैंने सूरत से राइफल के बट और दो पाई को क्लोज करके झोले में डाला और झोले को पीठ पर लाद कर मशी की ढलान उतरने लगा। मेरी रफ्तार इतनी ही तेज थी जितनी किसी निशेब में उतरने वाले ऐसे शख्स की हो सकती है जिसके पीछे मौत लगी हो। उतराई में दौड़ते वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल अपने जिस्म को संभालना होता है, क्योंकि जरा सा तवाज़ुन बिगड़ने से इंसान का थोबड़ा बिगड़ने में देर नहीं लगती। इसका आसान तरीका यही है कि आदमी को सीधे की बजाय तिरछा होकर दौड़ना पड़ता है। यूं के पाँव का टखने वाला हिस्सा आगे रखा जाता है और आम दौड़ के बरक्स एक ही पाँव मुसलसल आगे रहता है। मेरे दिमाग में दूसरे कोबरे की आमद का खतरा बैठा हुआ था। पहले वाले को तो मैंने इसकी बेखबरी में मार गिराया था, और इसके इबरतनाक अंजाम के बाद दूसरा पायलट कभी भी ऐसी गलती न करता। अचानक मेरे जहन में इनकी ट्रांसमिशन सुनने का दाइया पैदा हुआ। वायरलेस सेट काफ़ी देर से बंद करके मैंने जेब में डाला हुआ था। कोट की जेब से वायरलेस निकाल कर मैंने ऑन किया। लोरा ब्राउन बड़े गुस्से में किसी को लिताड़ रही थी। तुम्हारे सूरमा अब तक नहीं पहुंचे, इन्हें कहो जल्दी वहां पहुंचकर मालूम करे पायलट को कैसे हादसा पेश आया है। ओवर। जी मैडम, वो बस पहुंचने ही वाले हैं। असल में मगरिबी जानिब से चढ़ाई बिल्कुल सीधी है, इसलिए उन्हें देर हो रही है। ओवर। कमांडर मुबीन की सफाई देती आवाज उभरी। तमाम हेली के गिर्द ना इकट्ठे हो जाएं, कुछ को कहो ऊपर पहुंचकर देखें, हो सकता है गिरने से पहले पायलट इस खबीस को निशाना बना चुका हो। ओवर। ठीक है मैडम। ओवर। ओवर एंड ऑल कहकर लोरा ब्राउन ने बात खत्म कर दी। मैंने पुरानी फ्रीक्वेंसी लगाई। 2-3 मिनट बाद ही मेरे कानों में कमांडर अब्दुल हक की आवाज आई। अब्दुल्ला, क्या हाल है? वो शायद वक्फे से मुझे पुकार रहा था। माजरत खाऊं दोस्त, मैं जरा मसरूफ हूँ, बाद में बात होती है, फिलहाल खुदा हाफिज। मैं फूले सांसों के साथ कहा और इसके साथ ही 15 नंबर चैनल लगा दिया। इस दौरान मेरी रफ्तार जरा सी धीमी हुई थी, लेकिन मैंने रुकने की कोशिश नहीं की थी। आधे से ज्यादा उतराई मैं तय कर चुका था और अब तो छदरी झाड़ियां शुरू हो गई थी, जो मुझे अच्छी खासी आड़ मुहैया कर रही थी। अगर दुश्मन नशेब में झांक भी लेता तो मुझे इतनी आसानी से न ढूंढ सकता है। नीचे नाले में कोबरे के फायर से बचने के लिए भी काफी जगह मिल जाती है। शुक्र है अब्दुल्ला भाई, आपकी आवाज़ सुनी। कमांडर अब्दुल हक की इत्मीनान भरी आवाज़ उभरी थी। यहाँ एक बात नाजरीन के गोश गुजार कर दूं कि वायरलेस सेट, रेडियो सेट पर जब एक आदमी बात कर रहा हो तो दूसरा सिर्फ सुन सकता है। अगर दूसरा भी बटन दबाकर बात करने की कोशिश करेगा तो दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन सकेंगे। इसलिए तरबियत याफ्ता अफवाज में ये तरीका राइज है कि जब एक आदमी अपनी बात मुकम्मल कर लेता है तो ओवर कहकर बात की तकमील का बताता भी है, ताकि दूसरा अपनी बात कर सके। आम लोग ओवर वगैरह का खटराग नहीं फैलाते, वो बस अंदाजे ही से जान लेते हैं कि मुखालिफ की बात मुकम्मल हो गई है। दहशतगर्दों की गुफ्तगू ऐसे ही बगैर ओवर कहे चलती रहती है। इसी तरह मुजाहिदीन को भी मैंने इसी तरह गुफ्तगू करते सुना है। यहाँ ये वजाहत इसलिए करना पड़ी कि जिन लोगों का भी कभी रेडियो सेट पर बातचीत करने का इत्तेफाक नहीं हुआ, कहीं ये बात उन्हें उलझन में न डाल दे कि इसी वायरलेस सेट पर बात करते हुए अमेरिकन वगैरह हर बात के इख्तिताम पर ओवर कह रहे हैं और मैं कमांडर अब्दुल हक के साथ बगैर ओवर कहे कैसे गुफ्तगू करता रहा। बाकी गप बाद में होगी। ये बताओ इस वक्त कहाँ पर हो? मैंने पूछा। हम तयशुदा जगह पर जाने के लिए निकल चुके हैं, मगर हेलीकॉप्टर की आमद की वजह से रास्ते में रुक गए हैं। वापस ठिकाने पर पहुंचो, वहीं आकर बात करते हैं। ठीक है। इसकी इत्मीनान भरी आवाज़ उभरी। वायरलेस सेट जेब में डालकर मैंने दोबारा अपनी रफ्तार तेज कर दी।
नाले में उतरते ही मेरे कानों में क्लाशनकोफ की तड़तड़ाहट गूंजी। 4-5 क्लाशनकोफें इकट्ठी ही गरज रही थी। मैंने सर उठाकर देखा, दुश्मन बुलंदी पर पहुंच चुका था और वहीं से वो नाले में फायर कर रहे थे। क्लाशनकोफ की कारगर रेंज इतनी नहीं थी कि वो मुझे वहां से निशाना बना सकते। अलबत्ता ताकुब करके मुझे नुकसान पहुंचाना मुश्किल नहीं था। एक बड़े पत्थर की आड़ में रुककर मैं इनका जायजा लेने लगा। वो मेरे ताकुब के लिए नशेब में उतरने लग गए थे। नज़दीक पहुंचने पर मैं इनका मुकाबला न कर पाता, क्योंकि स्नाइपर राइफल दूर की लड़ाई के लिए ज़्यादा मौसर है। नज़दीकी और दो बदूल लड़ाई में तो ऑटोमेटिक और हल्की राइफल ही ज़्यादा करामद होती है। इन पेशकदमी में रुकावट डालना ज़रूरी था। रेंज मास्टर को झोले से निकालकर मैंने पत्थर पर लगाया, फासला नाप कर इनकी बुलंदी का जाविया नापा, क्योंकि दुरुस्त फायर करने के लिए मुझे इन तमाम मालूमात की ज़रूरत थी। अलबत्ता अब मेरा इतना तजर्बा हो चुका था कि 1 मिनट की कलील वक़्त में मैं रेंज लगा चुका था। पहला फायर मैंने इस पर किया जो सबसे आगे था। इसकी तेज़ रफ्तार गोली लगने के बाद भी बरकरार रही थी। चूंकि मैंने बैरल पर साइलेंसर चढ़ाया हुआ था, इसलिए बाकियों ने अपने साथी के गिरने को ठोकर लगने पर मामूल किया था। लेकिन इसके बाद गिरने वाले 2 आदमियों ने एकदम इसके कदमों में रुकावट डाल दी थी। वो चीख चीख कर एक दूसरे को आड़ लेने का कहने लगे, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं था कि तमाम को फ़ौरन ही मजबूत आड़ मिल जाती। इनके छुपने तक 2 और आदमी बाकी नहीं रहे थे। बाकी 3 पत्थरों के पीछे लेटकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इनकी तादाद 10 थी, जबकि मेरे ताकुब में 8 आ रहे थे। इसका मतलब यही था कि 2 हेलीकॉप्टर के साथ रुक गए थे। मैं वायरलेस सेट निकाल कर इनका मखसूस चैनल लगा लिया, क्योंकि उन्होंने इस हादसे की इतला तो किसी को देना थी। वहीं लेटे रहो, आड़ से बाहर न निकलना, मैं तुम लोगों से बात करता हूँ। मेरे कानों में मुबीन की आवाज़ पड़ी। यकीनन वो मुबीन को इतला दे चुके थे और अब मुबीन उन्हें हिकमत अमली बता रहा था। इन्हें इंतजार का कहकर वो लोरा ब्राउन को पुकारने लगा। 2141 ओवर, सेंड योर मैसेज ओवर। लोरा की आवाज़ उभरी। मैंने महसूस किया था कि निक से ज़्यादा वो अहकाम पास करती थी। शायद वो निक से सीनियर थी या फिर इसे कमांड करने का कुछ ज़्यादा ही शौक था। मुबीन इसे 5 आदमियों की हलाकत का बताने लगा। ये उल्लू के पट्टे अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। एक हरामी इनके काबू में नहीं आ रहा ओवर। गुस्से में मुब्तला होकर वो गालियाँ बकने पर उतर आई थी। मुबीन ने कहा, मैडम मेरा ख्याल है वहाँ कोबरा भेज देते हैं। अब हेलीकॉप्टर की हिफाजत के लिए कोबरे की ज़रूरत नहीं रही। तमाम लाशें एक जाल में बांध कर MI स्यूटन रवाना हो चुका है ओवर। ठीक है, इसके पायलट को भी पहले वाले हरामी का अंजाम बता दो। खाली भौंकने वाले सुअर इकट्ठे हो गए हैं। ओवर एंड ऑल लोरा ब्राउन का गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। हाय बेबी, इतने प्यारे होंठों से इतनी गंदी गंदी गालियां बकना कोई अच्छी बात तो नहीं ना। ओवर, मैं इसे मजीद सुलगाने से बाज नहीं आया था। इसने तुम के बाद ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो यहाँ बताने की कम से कम मुझे हिम्मत नहीं है। शायद अंग्रेजी जुबान की सारी मारूफ और गैर मारूफ गालियाँ इसे अजबर थीं। हमारे यहाँ जो इंग्लिश गालियाँ जुबानें ज़द-ए-आम हैं, इन्हें हम उर्दू गालियों के मुकाबले में कम बुरा समझते हैं। ये हुक्मरान ज़बान का एजाज़ ही है कि गालियाँ सुनने वाला बेसाख्ता क्या उठता है। लगती है गालियाँ भी तेरे मुँह से क्या भली, कुर्बान तेरे फिर से मुझे कह दे इस तरह। मगर इसने जो अल्फाज मुंह से निकाले थे, मर्द होने के बावजूद मुझे पहली बार वो सब सुनने का इत्तेफाक हुआ था। किसी गालियां बकने वाले के जवाब में वैसी ही अल्फाज मुंह से निकालने का मतलब ये होता है कि आप भी इसकी सतह पर आ गए हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि गालियां बकना अपनी कमजोरी और बेबसी का इजहार करना है। लोरा ब्राउन भी कुछ ना कर सकने पर यूं बेहूदगी पर उतर आई थी। मैंने कहका लगाकर इसे मजीद सुलगाया। वो मजीद मुगल्लज़ात बकने लगी। इसकी जुबान रुकने पर मैंने परेशान लहजे में कहा, ये गालियां बकना कहीं मेरे साथ जाने के वादे से इनहराफ की चाल तो नहीं है ओवर। मिस्टर, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। इसका गुस्सा देखकर लग रहा था कि अगर मैं इसके सामने होता तो वो मुझे कच्चा ही चबा डालती। मतलब मेरा अंदाज़ा ठीक है, तुम्हारे साथ जाने की ख्वाहिश ख्वाब ही बनी रहेगी ओवर। मैंने यूं दुख का इजहार किया गोया सच में वो मेरी साथ जाने के लिए तैयार थी। अगर मेरे सामने होते तो तुम्हें बता देती कि तुम कितने कुछ दलेर हो। इससे बातें करते हुए मैं पत्थरों की आड़ में लेटे हुए दुश्मनों से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं हुआ था। इसकी मूसलाधार फायरिंग अब गाहे बगाहे की टक टक में तब्दील हो चुकी थी। मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं फजूल ट्रिगर दबाने से परहेज ही करता हूँ। उस्तादों ने हमेशा बिला मकसद की फायरिंग से रोका था और मैं इस असूल पर सख्ती से कारबंद रहता हूँ। इसी वजह से तो दौराने तरबियत कभी गलत गोली चलाने की पादाश में उस्ताद मोहतरम राव तसव्वुर साहब की तादीबी बात से बहरामंद नहीं हो सका था। इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं हमेशा ही बेइज्जती कराने से महफूज रहा था। निशानाबाजी से हटकर खैर से मुझे भी दर्जनों बार बेइज्जत होने का शरफ हासिल रहा है।
लेकिन ये मौका तफसील बताने का नहीं है। लॉरा ब्राउन सीधे मुंह बात करने पर आमादा नहीं थी और मुझे भी खामखा बेहुदा अल्फाज सुनने का कोई शौक नहीं था। इसलिए मैं मजीद कुछ कहे बगैर दाएं बाएं किसी ऐसी जगह की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा जहां मैं हेली की फायरिंग से अपना बचाव कर सकता। यूं भी नाले में जा बजाय ऐसी चट्टानें बिखरी पड़ी थी जिनके नीचे घुसकर मैं अपना बचाव कर सकता था। इसलिए मुझे हेली का अब पहले जितना खौफ नहीं रहा था, बल्कि एक हेली को गिरा लेने के बाद मेरा हौसला बुलंद था। मैं छुप कर हेली पर निशाना साध सकता था। यूं भी साइलेंसर की वजह से मेरी राइफल से निकलने वाली गोली की आवाज़ ही नहीं आती थी। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।